So hello everybody, welcome to Tushar podcast. Here is our guest Sheetal Malik from Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein as Sonali Sawan. Hi Yeah. ma'am, welcome to Tushar podcast. Thank you. Thank you for inviting me, Tushar. So basically our first question ma'am, from where you have started your acting career? Okay, so it goes long back actually. I'm a classical dancer. I'm a Bharatanatyam and Kuchipudi dancer basically. And I was performing I was to participate in Miss Maharashtra, but something happened and I backed out of the contest. And the organizers, they told me that if you can't be a participant, will you, they knew that I was a classical dancer. So they said ki, will you perform for us the first opening thing. So I said okay, and I did a Bharatnatyam piece in that. There Mr. Sachin Pilgaonkar saw me, and he asked me whether I was interested in acting, and I was like, no, I don't know acting. I've not taken any sessions, I've not done anything. So he said, that's okay. Acting is all about being natural. So I think that inspired me, and that's how my career started. So it So was ma'am, because of basically him. yes ma'am. So basically the audience start seeing ma'am very confidently from the show Gutrgu. Yeah. Guturgu was You my get great first very big frame show. you get great frame from you have started the audience entertaining from the that show, it means that. Yeah. And Yes. ma'am, this is the main pride that this that episode and that show is a only show which is a silent show without any talk of any person. Yes. It was much more difficult than it was seen because we never had dialogues. We just had screenplay in that, and every action which every actor did was all their creativity. And only the thing is, the director, we had a very superb director, so he guided us in such a way that we always came up with new ideas, and I think that helped us in that show immensely, I could say. So ma'am, which is a turning point in your life when you move to dancing to acting? See, dancing is still happening. I'm still a dancer because I'm a classical dancer. I've been performing, I've been practicing since the age of 3. So dancing will never roll. So it was never a transformation. It was I was a dancer before. Now I'm an actor and a dancer. So it is just a added bonus for me. It's like that. It helps. I think it helps me in building my own personality, my own vision in every way. Because as a dancer, I travel a lot. I have 3 big passports with me because I've traveled that much. So being a dancer has given me a vision, a different perspective towards life, and being an actor has taken out so much from me, which maybe I did not know about me. And So it's like ma'am, that. what's your reaction when the script of Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein as a Sonali Chauhan come to your hand? Um, See, frankly speaking, I don't have much to do in that. But the thing is, ki I work out on my script too much. If the script comes to me, I have my own things in my mind, and I always ask director that whether I can do this, I can add this, I can subtract this, and I think they have given me that leverage to shape the character according to how I want it. So I have put in a lot of efforts in that show, and yeah, everybody helps me out in that, so I'm really very happy working with the best co-stars, the best production house, and we are more like a family there than friends, so it's Yes, like that. ma'am. Yeah. And ma'am, basically there is a signature dialogue of you in that show also that you speak a word in three types. यस और बीच में के एक That एपिसोड में हम makes लोग ने बोला भी था कि आप 3 वर्ड्स क्यों बोलते हो, तो मैं बोली आप लोगों को समझ में भी तो नहीं आता एक बात बोलने में, सो ये भी बोल चुकी हूँ मैं. सो इट इज ऑल आर प्रॉम्प्ट इम्प्रोवाइजेशन दैट वी डू ऑन सेट्स. इट्स लाइक ma'am, दैट. that was the main and main very main dialogue in that show which makes ma'am
a proper confidence for you also from the audience. Yes, 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 absolutely. Absolutely. It gives me a different stand in the show. My three dialogues always stands out. So it gives me a different और मेरा knowledge भी बढ़ रहा है उसमें. Yes, ma'am. And so, ma'am, how did you manage your ma'am house and the all shooting also? Because there is a lot of work for a woman to work in their house also, and ma'am in the any other job also. So, ma'am, how do you manage? Absolutely, that's a very brilliant question, which I would really like to answer. Because, yeah, being a married woman, being a mother of an 8-year-old, it is really difficult to manage. But when you have a very beautiful family who supports you in each and every way, everything gets sorted out. So not only my husband, my in-laws, my mother, my father, my maid, they cooperate with me so much. And not to forget my daughter, who is just 8 years old, but 2 months I was in Hyderabad. She was there with me for quite some time, but she returned back home because she has to continue with her studies. But she never troubled me for anything. So I think, if you really want to succeed in life, having a very strong background, having a very strong husband as a pillar, and having more than that, having very good in-laws, yeah, really helped me. And it will really help everybody. And I think having a strong family is very important, and I give all my credit to my family for helping me out, for making me what I am today. So I'm really grateful to God that they have given me such a beautiful people around me. Without family, nothing is possible in our life Nothing. because if family doesn't support us, we are nothing to do anything. Absolutely, absolutely. I totally understand this. And of course, there You are ups and downs, but yes, we have to come up with the best what we can do. That is what I feel. and you are a producer also. You have producers serial name खड़े हैं तेरी राहों में, Yes, yes, yes. Oh, how nicely you have worked on my and which is I think it's telecast on Star Utsav. Hotstar. Yes, 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 yes. I have done that. I've And done you that. also appeared in a show like Ma'am Pyar Ki Luka Chupi, which is aired on Dangal, Yes, that where show is you very close to my heart, and I would never forget that show in my life. The character which they had given me, I think Rashmi Sharma production trusted me with that character, because that character was so pivotal, and so beautifully done. And there also I added so many things, and they were so cooperative to me. But yes, that show is very close to my heart. and then there is a show named Kuni Mulgi Deta Ka Mulgi, which you work Oh in no, that was a 2011. film. Yeah, It yeah, was that a film, was a yes, yes, film. yes, Yes, that was a yes, yes, film. yes. Film. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it was a So, ma'am, Marathi film, and yes, yes, yeah. which is aired on 2011, I think. Yes, 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 yes. So, Absolutely ma'am, right. when you start your at the age of which age you start your career? Uh, I can't. It means ma'am, I it started. means interest in acting and in dancing. In which age you got interested? See, dancing I started since the age of 3. I told you I was a Yes. classical dancer, and acting happened only after my I was in 12th or something. Acting happened after 12th only. But the real acting career, I took it after I completed my graduation, because for my father it was very important, being from a very middle class family, middle class Maharashtrian family, educated family. It was very important for my father that I complete my education first, and then he told me, I will never ask you anything other than that, but at least complete your graduation. You should have that minimum education to stand in front of people, to be confident, and to be able to speak nicely. So I think, yeah, after my college I really put in all my efforts. But I would say that my real career graph zoomed up after I got married. So yeah, after marriage my husband never stopped me doing anything, and still he doesn't. So yeah, after my marriage I really did nicely. Ma'am, first main thing for a middle class person is to be financially strong to fulfill our dreams.
Yeah, that is very true. But for me and my family, the thing is, my father is an artist. He was in Chaitra Leo Burnett. It's a company. It's an advertising company. So our vision has never been money. Our vision has never been to we never had that business attitude in us. So it was always art. So as I told you, I was from a very middle class family, but there were no such things like, oh my god, अब पैसे बेटी को पैसे कमाने पड़ेंगे, ऐसा कभी था ही नहीं. So he was always like, whatever I'm earning, we are fine with it. You go with your passion, you go with your art, which as you said, middle class family में बहुत कम वो होता है. हमारा सबसे पहला वो होता है, नहीं पैसे कमाने हैं, वो करना है. But my father never forced me into that. He said, if you want to be a dancer, you have to be a dancer. If you want to be an actor, you be an actor. Be what you want to be. And I think this is very important. ये मेरे पापा ने 15 साल पहले भी सोचा था. और आज भी अगर लोग ये सोचे तो आई थिंक द चिल्ड्रन, द अपकमिंग जनरेशन वुड बी सो मच बेटर. सो मैम बेसिकली एक सवाल मुझे कल आया था कि जो आपके जो रोल है उसमें मैम ये पूछा गया था कि जो सोनाली जो है वो पाकी की साइड इतनी क्यों रहती हैं, सही की साइड इतनी क्यों नहीं रहती हैं? Okay, now the background of Sonali is she's from a very rich family. She's very arrogant. She's very proud of her own money, and she does only what Bhavani ji says to do. ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी से बहुत प्यार है. मैं बहुत बार ऐसे रिएक्शन में दिखाती भी हूँ कि अच्छा ये लड़की तो बहुत इसके मन में क्या चल रहा है मुझे सब पता चल रहा है. बट वो सही के साइड ज्यादा नहीं रह सकती बिकॉज भवानी जी इज नॉट ऑन हर साइड. दैट्स द मेन रीजन. बिकॉज एक बात हुई है कि मेरा जो बेटा बना है वो एक गरीब घर की लड़की मेरे घर में लाया है. तो भवानी Yes. जी को वो चीज पसंद नहीं है. मेरा बेटा कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, फिर भी उसको घर में रखा है. तो आई हैव टू इम्प्रेस भवानी सो दैट माई चाइल्ड स्टेज इन द हाउस विथ हिज वाइफ. तो भवानी जी जो भी बोलती है मुझे करना पड़ता है. बहुत बार सोनाली को पता चलता है अच्छा जी पाखी तो ऐसा वो सोच रही है. बट फिर भी और कई बार ऐसे भी आया है कि उसने सही की साइड ली है क्योंकि कि यार सही सही कह रही है. बट बिकॉज ऑफ भवानी जी शी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज in a way she doesn't have a say in the family. So that is one thing which is uh, that's the thing because मुझे बाकी की साइड लेनी पड़ती है. ऐसा है. एंड मैम ऑडियंस को सबसे ज्यादा हंसी तब आती है कि जब आप करिश्मा से जब भी कुछ बोलते हैं और वो उसको बोलने की जगह अपना सिग्नेचर स्टेप बोल देती है. हाँ. ऑडियंस को हाँ, सबसे ज्यादा हंसी उसी टाइम पे आती है कि हंसी आप तभी उन्हें कुछ आती है. बता रही होती है, उन्हें कोई कुछ बता रहा होता है, वो उसको नहीं छोड़ के अपना सिग्नेचर स्टेप बोलने शुरू कर. हाँ हाँ हाँ. इसमें हम दोनों की बहुत छोटी छोटी जो आपस में बात करने के जो विस्पर्स वो है वो काफी लोगों को पसंद आते हैं. हम दोनों का अपना ही कुछ चलता रहता है साइड में. So ma'am, how Sheetal is similar to Sonali? What are the main role between them? Basically Sheetal is nowhere like Sonali because as I told you Sonali comes from a very rich background. I'm from a middle class very normal background. सोनाली जितना डेक्ड अप होती है उतनी मैं तो कभी नहीं होती. लाइक मेरी डॉटर भी मुझे कहती है कि मेरे स्कूल में जब तुम आया करो थोड़ा लिपस्टिक लगाया करो because you are actor, you have to look like an actor. So Sheetal is nowhere like Sonali. I think Sheetal is completely opposite than what Sonali is. I have tried adding my comedy जैसे मैं हमेशा हूँ. I'm a very comic person and I love being मुझे ऐसे कॉमेडी वॉमेडी बहुत पसंद है. तो मैंने सोनाली के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ना रख के थोड़ा सा कॉमेडी अपना ऐड करने की कोशिश की है. सो बस वहां पे एक लिंक है शीतल और सोनाली का, बाकी कहीं भी नहीं. सोनाली कैरेक्टर इज कम्प्लीटली व्हाट आई नेवर वांट इन लाइफ. लाइक मैं वैसा कभी नहीं बनना चाहती. मैं वैसी हूँ ही नहीं जैसी सोनाली है. So So they are ma'am, completely different characters. yes. So ma'am, what are the tips for the upcoming youth who is want to coming in the acting industry like that? Ma'am, you have do a great job, and ma'am, you are also inspiration for the coming youth also. So what are your tips for so that they can follow before coming in the industry? The basic tip is people think that अच्छा मैं लंबा हूँ, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं गोरी हूँ, मैं पतली हूँ तो मैं
मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको एक एक्टिंग करियर में आना है तो खुद को ग्रूम करने की बहुत ज़रूरत है। एक्टिंग के एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। बुक्स पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, अपने लैंग्वेज पे काबू करने की बहुत ज़रूरत है। एंड आप एक कैरेक्टर को जब लेते हो तो उसके स्किन ऑफ द कैरेक्टर में कैसे जा सकते हो, आप उस कैरेक्टर को कितना अच्छी तरह से निभा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लोगों को लगता है हाँ ठीक है मैं ये डायलॉग बोल दूंगा, बट देन उस डायलॉग में उस वो डायलॉग आप क्यों बोल रहे हो, उसके पीछे बैक स्टोरी क्या हो चुकी है, उसके आगे क्या होना जरूरी है। जैसे अगर आपको एक सीन भी मिलता है तो आपको ये बहुत जानना जरूरी होता है कि इस सीन के पिछले सीन में मेरा एटीट्यूड एज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी क्या था, और इसके आगे के सीन में एज अ कैरेक्टर इस स्टोरी में मेरा एटीट्यूड क्या होगा, उस हिसाब से वो बीच में का सीन प्लान करना होता है। सो आई थिंक ग्रूमिंग, सीइंग थिंग्स, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को कॉपी करो, बट देखो कि उस आदमी ने उस एक पर्टिकुलर सीन में खुद को कैसे ढाला है, या फिर खुद को कैसे इतना अच्छा बनाया है कि हम लोग को लगता है अरे भाई ये तो वही है। जैसे हमारे यहाँ पे पाखी है, पाखी इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट शी इज एज पाखी। पाखी और ऐश्वर्या तो बहुत अलग चीजें हैं, बट देन वो ऐसी एक्टिंग करती है कि लगता है कि यार ये इसको तो हेट ही करो। तो दैट इज व्हाट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग, लर्निंग थिंग्स, हमेशा पढ़ते रहो। हमेशा खुद को एक कैरेक्टर अगर आप देख रहे हो तो उस कैरेक्टर में खुद को और देखने की कोशिश करो, अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, या मैं होती तो मैं कैसे करती। आई थिंक बीइंग प्रेजेंटेबल, यस आज की जनरेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेबल रहो, बट उसके साथ ही आप बहुत एक्टिंग की चीजें सीखो। आई थिंक दैट विल हेल्प द यूथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। मैंने 2 ऑडिशंस दिए, मुझे नहीं काम मिला, तो बस अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मैं वापस घर लौट जाऊंगी। क्यों? आप आए हो, आपने अपना 1 साल दिया है, तो 1 साल में कुछ नहीं होता। आपको खुद को प्रूव करने के लिए आपको 3 4 5 साल देने पड़ते हैं। लोग कितना, मतलब लोग एनएसडी से सीख के आते हैं और इतना ज्यादा उनको नहीं मिलता है काम, बट वो होता है ना, जिद नहीं छोड़ते। सो आई रियली फील दैट नॉट गेटिंग डिसहार्टेड, हैव पेशेंस, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, 100% ऑनेस्टी के साथ काम करो, आपको जरूर काम मिलेगा। देर काम की कोई कमी नहीं है, और अच्छे लोगों की हमेशा जरूरत है इंडस्ट्री को। सो आई फील दैट दैट्स वन थिंग, यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। दैट इज व्हाट आई फील। सो मैम बेसिकली एक सवाल सबके मन में रहता है कि मैम लोग जो है मैम वो बॉलीवुड एंड जो ये सीरियल इंडस्ट्री होती है इसके बीच का डिफरेंस समझ में नहीं पाते हैं, तो मैम आप इसके बारे में जरा तो एक बात मैम पूरा बताइए। सी, एक्टिंग इज एक्टिंग। आपको आपको कहीं भी करनी है, आपको जहाँ करनी है, आप अपना मीडिया ढूंढो। आप पहले ये सोचो कि क्या क्या मैं यहाँ पे अपनी बेसिक चीजें ढूंढने के लिए आया हूँ, या मैं एक एक्टर बनने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब आप एक एक्टर बनने के लिए आते हो, आपके पास टाइम होता है, तो आप फिल्मों में ट्राई करो। अगर आपको एक ऐसा है कि नहीं बाबा, मेरे को हर मंथ आई हैव टू हैव दिस मच मनी इन माई हैंड, then you can do serials. There are different mediums and डिफरेंट चीजें हैं। जैसे अगर आप फिल्म कर रहे हो, आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, आपको एक के बाद एक तो फिल्म मिलेगी नहीं। आप एक फिल्म करोगे, फिर आपका एक पीरियड होगा जहाँ पे आपको काम नहीं मिलेगा, या मिल भी जाएगा। इट्स इज ऑल फेथ, इट इज ऑल लक, आप कितना आपको मिलता है काम। सो आई थिंक एक्टिंग इज वन थिंग। अभी वो आप 30 mm पे कर रहे हो या फिल्म कैमरा पे कर रहे हो, वो सिखाने के लिए आपके पास डायरेक्टर है, बट आपको एक बेसिक चीज, एक कैरेक्टर की समझ, वो होना बहुत जरूरी है। दिस इज द थिंग। एंड मुझे हमेशा लगता है आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मुझे लगता है कि उनकी जो सोच है, मैं उस सोच में खुद की सोच को मिक्स करके अपना कैरेक्टर बनाती हूँ। मैं सिर्फ अपनी सोच नहीं रखती, या फिर सिर्फ उनकी सोच नहीं रखती। So I think that gives me a balance between what they want and what I can do. So that is the thing. एंड मैम बेसिकली एक्टर के लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि मैम अपनी फैमिली एंड प्रोफेशन के बाद भी अपने फैंस को मैम प्रॉपर अट्रैक्शन देना।
हाँ उनसे भी मैम ये मैम तो डेली कांटेक्ट करना सबसे मेन। मैम जो फैंस इसी पे गुस्सा बहुत होते हैं। यस यस होते हैं, पर उनको एक बात समझनी चाहिए कि हम लोग 2 या 3 घंटा काम नहीं करते, हम लोग 16 घंटे भी काम करते हैं, हम 14 घंटे भी काम करते हैं। और ये तो सिर्फ मैं काम की बात बोल रही हूँ, पर हम लोग आधा पौना घंटा पहले जाते हैं सेट पे, हम रेडी होते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, कभी कभी कपड़े फिटिंग के नहीं होते, एक अलग इरिटेशन होती है, काम की इरिटेशन होती है। बहुत बार सेट पे एसीज होते नहीं हैं, तो हमें वो भी इरिटेशन होता है, पसीना आता है, थक जाते हैं। तो बहुत बार इसीलिए भी होता है कि हम लोग फैंस को नहीं अटेंड कर पाते। मुझे लगता है ये हमारी तरफ से गलत भी है और सही भी है। गलत इसलिए है बिकॉज दे बेचारे दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, बट सही भी है बिकॉज हम लोग भी थक जाते हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, खुद को ही अटेंड नहीं कर पाते। जिम जाना, खाना पकाना, बहुत सारी चीजें होती है, घर देखना। बट उन सब में मैं एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि मेरे हर एक फैन को मैं अटेंड करूँ, मेरी रिक्वेस्ट जो आती है वो मैं देखूँ, मैं स्टोरीज पे डालूं। बट बहुत बार हो जाता है कि नहीं कर पाते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी फ्रॉम माई पार्ट अगर मैं कहीं कम पड़ गई तो। नहीं कि मैम, नहीं ऑडियंस मैम समझती है कि मैम वो भी आपको मैम मतलब एक बार बोलेगी, लेकिन अगर वो दूसरी बार नहीं बोल रही है तो वो ऑटोमेटिक समझ गई कि मैम अभी जो एक्टर्स हैं वो मैम इस टाइम अभी वो उस हालत में नहीं है कि मैम हमसे बात कर हाँ पाए, या फिर अभी वो आराम का उनका समय हो सकता है, मैम ये बोल सकते हैं। हाँ right, absolutely, and एंड we मैम have got बेसिकली some wonderful fans. I'm very happy they take so much of time out कि हमारे कोलाजेस बनाते हैं, इतना अच्छे अच्छे से करते हैं। लाइक हमें लगता है शायद हम भी खुद को उतना प्यार नहीं करते जितने शायद फैंस लोग हमें करते हैं। बहुत बार ऐसी फीलिंग भी आती है। सबसे मेन तो ये होता है कि मैम जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं सबसे मैम क्यूट उनका ही मोमेंट लगता है। बहुत क्यूट लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ना अपना बहुत स्टडी टाइम छोड़ के ये सब कर रहे हैं, यस विच आई यस फील यस। रियली बैड कि यार ये वक्त है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप देखो, आप सीरियल देखो, आप फैन क्लब बनाओ, सब कुछ करो, बट ये इसमें भी एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे आई एम बैलेंसिंग माई वर्क एंड माई होम, माई चाइल्ड, माई हस्बैंड, एवरीथिंग। आई थिंक उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप चिल्लाते ना रहे, बिकॉज मुझे पता है कि आई हैव अ डॉटर, जब वो पढ़ती नहीं है तो मुझे कितना गुस्सा आता है। जब वो कार्टून्स देखती रहती है, यूट्यूब देखती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये टाइम है कि आप अपना करियर बना सकते हो, आप अपने आप को और जितनी चीजें आप नॉलेज ले सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि प्लीज जितना टाइम आप इसमें डाल रहे हो उतना ही टाइम पढ़ाई में डालो, ताकि आपके पेरेंट्स को तकलीफ ना हो और आप भी मजे से ये सारी चीजें कर सको। मैम पेरेंट्स केवल हमसे केवल स्टडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें वो किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल स्टडी एग्जैक्टली। हमें करनी है, उसके बाद हमें अब जिस दिन बच्चा वो टाइम है उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। यस यस एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन से भी ज्यादा ये जनरेशन इतनी शार्प है, मतलब उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो बस सीख के आए हैं सब कुछ। सो द जनरेशन इज सो प्रॉम्प्ट, सो शार्प, दे नो एवरीथिंग एंड दे कैन एक्सप्लोर सो मच। अब इंटरनेट की वजह से इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी हो आप लोग, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मुझे बहुत सारी चीजें मेरी डॉटर सिखाती है कि मम्मा यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, और आपको ये करना पड़ेगा, आप ऐसे ही मत बैठो, आप और रील्स बनाओ तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ये तो मेरी बेटी मुझे समझाती है। सो और या मैम कभी दिस कभी उनके साथ ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी जैसे जो मैम पेरेंट्स होते हैं जब भी अपने मैम चिल्ड्रन से बात करते हैं, कभी कभी तो ये लगता है कि वो उनके चिल्ड्रन नहीं है बल्कि वो उनके पेरेंट्स। आई नो इट मेनी टाइम्स, इट हैपेंस। ये मेरे साथ भी होता है घर पे। मैं बहुत चीजें मेरी बेटी को पूछती हूँ, ये मेरा नहीं हुआ है तो तू बता दे कैसे करना है। तो यस इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। एंड सबसे मैम हार्ड होता है कि एक्टर के लिए कि उसको मैम ऑन स्क्रीन नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना है, एंड जो ऑडियंस का सामने से जो मैम जो रिप्लाई आ रहे हैं उनको पॉजिटिव वे में लेना। नहीं, सी द थिंग इज यस एब्सोल्युटली राइट, अपना कैरेक्टर अगर नेगेटिव है तो हमें वो प्ले करना ही है, बिकॉज हमें वो किरदार दिया गया है, हम पे विश्वास किया गया है कि हम वो अच्छे से निभाएंगे, तो वो तो है। बट व्हेन इट कम्स टू कमेंट्स एंड ऑल, इट्स बेसिकली यू आर अ नाइस पर्सन फ्रॉम इनसाइड, तो उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। यस प्यार दिखाने के लिए मुझे तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन फ्रॉम इनसाइड। मेरी जो भी नेगेटिविटी है या मैं नेगेटिव रोल करती हूँ वो बस स्क्रीन के लिए है। सो दैट्स माय वर्क,
I go there, I do my work. But basically, तो मैं शीतल ही हूँ. So it really, it's not like that. It's not that difficult to attend fans and all. वो positive होना बहुत मेरे लिए तो बिल्कुल difficult नहीं है. मेरे लिए negative होना बहुत difficult है on set. ये होता है. एंड मैम बेसिकली आपसे एक सवाल ये सबका ही था कि मैम आपके लोग सरनेम में बहुत कंफ्यूज हैं. चौहान या मौलिक. मैम मौलिक, they think that you मौलिक. are a Muslim. Yes, they think that it's Malik and they think that you are a Muslim. No. मैं मुस्लिम नहीं हूँ. दो I respect every religion. I love every religion. But I am a Bengali. I am a Maharashtrian married to a Bengali. And it's not Malik, it's Maulik. MAULIK. बेसिकली हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. मतलब मेरे हस्बैंड. तो हम लोग को ये गिफ्टेड टाइटल है. तो मैम बेसिकली आप मैम मुंबई में, मतलब आपकी मैम बर्थ ही मुंबई में हुई थी या फिर आप शिफ्ट हुए थे मुंबई में? नहीं, मैं बॉम्बे से ही हूँ. मैं पहले थाना डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, विच इज 2 hours अवे फ्रॉम द मेन मुंबई. अब मैं प्रॉपर मुंबई में रहती हूँ. सो मैम आपके अकॉर्डिंग ऑडियंस के लिए, मतलब अब आपके हिसाब से आने वाले समय में शोज में क्या क्या चेंज होने चाहिए कि जो ऑडियंस को मतलब पसंद आए? शो में तो हमारे यहाँ पे तो हर रोज चेंजेस होते हैं. एंड हर रोज कुछ ना कुछ नया उनको देखने को तो मिलने ही वाला है. एवरी टाइम दे आर गोइंग टू बी ऑन टोज. अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, ऐसे. और आने के समय में तो बहुत ज्यादा लोग बहुत प्यार करने वाले हैं शो को, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं. एंड मैम एक तरीके से जब सेट पर जाते हैं तो एक मैम न्यू फैमिली की तरह मिलती है मैम सेट पे भी. ऑफ कोर्स. वो लोग तो फ्रेंड्स रहे ही नहीं है अभी, वो फैमिली हो गई है. क्योंकि हमको हम लोगों को उनके घर तक की सारी बातें पता होती है कि भाभी ने आज क्या बनाया है, भाभी ने क्या भेजा है. लाइक वो मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, बेटी के बारे में पूछते हैं. हम लोग मिलते हैं 2-2 3-3 लोग एक साथ. वीकेंड्स पे मिलते भी हैं हम लोग. सो इट्स लाइक अ फैमिली ओनली. वी आर नो मोर फ्रेंड्स. एंड लाइक हम मैम लोग एक वी दूसरे द को ऑडियंस, जानते हैं. मैम लाइक द ऑडियंस आल्सो एंजॉय मैम व्हेन you are मैम behind the scenes come on the YouTube. या ये Like लोग ma'am, बहुत it's आते on रहते हैं. Yamini ma'am's, like it's on यस Yamini यस. ma'am's or any other channel. They मिताली, always like यामिनी. everyone. या हम लोग, उन लोग को तो बहुत आदत है ऐसे मस्ती और वो करने की. उन लोग तो मस्ती करते रहते हैं. ये कुछ भी यूट्यूब का बनाते रहते हैं और उन लोग डालते रहते हैं. According to you, ma'am, who is the funniest person in the cast of तुम है किसी के प्यार में? अरे डोंट आस्क हु इज द नॉन फनीएस्ट. एवरीबडी फ्रॉम सई, विराट, पाखी, मैं, यामिनी, किशोरी मैम. सब फनी है. बहुत फनी है सब लोग. मतलब सर को, मतलब डायरेक्टर को बोलना पड़ता है अब बस हुआ यार, काम कर लेते हैं. मतलब यहाँ पे हम लोग झगड़े करते रहते हैं. सही को हम कुछ भी बोलते हैं और वहां पे उसी के साथ हम मस्ती करते रहते हैं. वहीं पे उसी के साथ मस्ती होती रहती है. ऐसा है. सो एवरीबडी इज सो फनी, एवरीबडी इज सो हैप्पी. एंड अगर हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे होते तो कहते यार तुम लोग क्या शूट कर रहे हो आज, हमारे बिना क्या शूट कर लोगे. ऐसे होता है. सो वी एंजॉय ईच एंड एवरी डे. एंड मैम या नॉर्मली सबको तो पहले मैम जब तक मैम वर्क नहीं करते हैं तब तक तो ये लगता है कि हमें हाँ वर्क करना चाहिए और वर्क करना चाहिए. लेकिन जब मैं वर्क करने पे आ जाते तो अब ये लगता है कि हमें अब छुट्टी ले लेनी चाहिए, अब मैं छुट्टी लेनी चाहिए आज की. नहीं, हम लोग को नहीं लगता है ऐसे. क्योंकि एक तो वी आर सो ब्लेस्ड दैट इतना पैंडेमिक है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी भगवान की दया से हमारे पास काम है. हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे जाने का कोई प्रेशर नहीं है. हम लोग जाते हैं, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गो टू वर्क. और हम लोग का कंपटीशन रहता है कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे लास्ट आया, किसने आज छुट्टी मारी. या फिर जैसे नॉट ओनली इन द कास्ट, इवन इन द क्रू, वी ऑल आर सो अटैच टू ईच अदर कि अगर कोई एक असिस्टेंट नहीं आया तो हम लोग कॉल करके उसको सताते हैं कि तू क्यों नहीं आया, आज क्या हो गया, आज क्यों नहीं आया. मतलब ऐसा है सेट पे. सो एवरी टाइम, इनफैक्ट वी डोंट एंजॉय अवर छुट्टीज एट होम नाउ, वी जस्ट एंजॉय इट ऑन सेट. ऐसे हुआ है हमारे साथ. So ma'am, in the last, I want to request you to ma'am please give a message to the youth who wants to come in the industry.
My message would be that only: be honest, be sincere, have patience, have courage to कि अगर आपको कुछ नहीं भी मिल रहा है लाइफ में, वो करेज रखिए कि मुझे जरूर कुछ मिलेगा, मैं कुछ कर दिखाऊंगा, वो जिद रखिए और बस आ जाइए, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. So in the last, thank you, ma'am, for coming on my platform. Most welcome. I thank you, Tushar, for calling me here, for hearing me out. That's very lovely of you. I see you also. You're so young, but you're so confident. And I'm really happy that आपने ये चीज choose की है and आप ये कर रहे हैं. So So call more ma'am, and more good people and just grow in life. yes, ma'am.